Hello students, come to now the last easy to remember applied part of morphology. But the thing is, you need to remember all the terminology which we have discussed, all the concepts, right? All the things, all the structures, root, stem, leaf, flower, उसके प्रकार, उसके modification, okay? Example के रूप में, it's like practical part, okay? और थोड़ा visualize, जैसे मैंने बार बार आपको visualize करने को बोला. We are on page number NCERT का 78, where the things start with floral diagram. So, but we are continuing with family Fabaceae. So, पहले पूरा एक प्लांट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे समझते हैं, वो देखेंगे. And then we'll go for again a technical part, that is how the diagram of a flower can be drawn. Okay, just in 3 lines, how can you explain entire plant? Okay, chalo, let's start with the family, that is Fabaceae. In Living World lesson, if you remember, we have studied that name of the family end up with ACEAE. So name of the family end up with ACEAE, right? Okay, so जब भी हम family का नाम ध्यान रखेंगे, तो हमको ये ending के तरफ ध्यान देना. Okay, so this is name Fabaceae, which is representing a taxa. Taxa Fabaceae is allotted to category family, and name of the family always end up with the suffix, that is ACEA. If initially this family Fabaceae is called Papilionoides, Papilionaceae, right? Okay, but now this Fabaceae word is very common. Why it is called Papilionaceae? Okay, Papilionoides, because the flower appear like a papillon, that is butterfly. Okay, we'll see. Now subfamily Leguminosae. तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, शब्द देखो, शब्द आपको मीनिंग बताता है. So legume is a type of fruit. Legume is a type of fruit. Fruit जिसका legume है, शेंग, शेंग बोलते हैं ना मूंगफली की शेंग. Okay, jawar, gawar ki शेंग. Okay, even you find out that the gulmohar tree, which is very common, when it flower, after that it produces very long leguminaceae. One more word, अगर आपको leguminaceae पकड़ के थोड़ा स्कूल का याद है, these leguminous plants which are having fruit legume are with root nodules. They are having root which are having knot-like structure nodule in which the rhizobia is present for nitrogen fixation. Rhizobia is a bacteria for N2 fixation. देखो, अगर ये कुछ आप स्कूल डेज का रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला गुलमोहर का प्लांट याद करो. गुलमोहर इज बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी. लेग्यूम इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, ओके, जिसको बोलते हैं सेंग. ओके, शेंग. ओके, इट्स फ्लावर इज लाइक अ बटरफ्लाई, so it is papillion, and now it is called Fabaceae. Understood? So this is about general information. Now go for the visualization, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ. See, this plant you must have seen. जैसे गुलमोहर आपने देखा है, वैसे आपने ये प्लांट भी वेरी कॉमन देखा होगा, which is a best representative of Fabaceae, which is there in your syllabus. मराठी में इसको गोकर्ण बोलते हैं, हिंदी में भी इसको गोकर्ण बोलते हैं. It is a climber. Okay, and see, it is like a मटार. Okay, it is like a मटार. Okay, it is pea जो मटार खाते हो. Okay, तो सिंपल भाषा में जब मैं आपको रिवाइज करते वक्त बोलूंगी, तो आपको बेटा 3 फैमिलीज है. एक है मटार, दूसरा पटैटो ब्रिंजल, और तीसरा है ओनियन. आपकी पसंदीदा सब्जियां मटार. देन सेकेंड वन इज सोलानेसी, दैट इज पटैटो ब्रिंजल, एंड द थर्ड वन इज ओनियन, दैट इज लिलिएसी. लिली के फ्लावर्स देखते हो ना, लिली के फ्लावर्स. तो सिंपल से फैमिलीज है, थोड़ा विजुअलाइज करके चलेंगे. ओके, सो लुक एट दिस. This is basically a climber. It's a pea plant, Pisum sativum. Okay, the flower is like this.
इट appears like a butterfly papillon. अब आप बोलेंगे मैडम कौन से एंगल से दिखता है? देखिए बटरफ्लाई जब पूरे अपने पंख ओपन करके बैठेगा तो इट विल appear like this and the middle part is like a insect body. Okay, so थोड़ा imagine sir. Okay, so it is a climber. Then the flower is like this. It is having a legume shank and the roots are with nodules which have rhizobia for nitrogen fixation in them. Right? Okay. So this is in general picture of this plant, best representative of Fabaceae. अब थोड़े जैसे मैंने बोले थे कि total botanical words इसका classification देखेंगे. If we start with all the categories which we have discussed in living world, kingdom, subkingdom, then class, order, family, genus, species. ठीक है? तो इसके ऊपर की पूरी बातें तो इसके लिए कॉमन होगी. जैसे मैंने बोला कि if we are talking about kingdom, right? See, I'm talking about kingdom. Kingdom क्या है? Kingdom is plantae. Okay. Then subkingdom phanerogams. Phanerogams का लिटरल मीनिंग जानते हो ना? जो शादी धूमधाम से मनाते हैं. Phanerogams, पॉलिनेशन करवा के शादी धूमधाम से मनाते हैं. और इसको और एक शब्द है स्पर्मेटोफाइटा, सीड बियरिंग प्लांट. स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग प्लांट. बेटा ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना? ओके, इट इज किंगडम प्लांटेई. Kingdom plantae, then phanerogams, it's also called spermatophyta, right? Then its division, sorry, इसके बाद आता है division. Okay, division is angiospermy. ये शब्द भी हमने सीख लिया. राइट. क्लास डाइकोटोलॉजी नहीं, डाई मतलब दो कॉटिलेडॉन किसके होते हैं? एम्ब्रियो के. सो इट इज हैविंग 2 कॉटिलेडॉन्स इन एम्ब्रियो. सब क्लास पॉलीपेटली. ओके, चलो देखो ये शब्द पॉली मतलब मेनी पेटल्स. सो इट इज अ प्लांट विथ मेनी पेटल्स विच आर फ्री. ओके, पॉलीपेटली. सीरीज कैल्सीफ्लोरी. ओके, अब ये बहुत रेयर नाम है, सो अगर ध्यान में रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज छोड़ दे सकते हो. देन ऑर्डर लेग्यूमिनल्स. देखो फिर से नेम ऑफ द ऑर्डर एंड अप विथ ALES. ओके, देखो कैसे रिलेट कर पाते हो. लेग्यूम जिसका फ्रूट लेग्यूम है, ओके, उसकी ऑर्डर लेग्यूमिनल्स, फैमिली फैबेसी. ओके, अगर हम पी प्लांट की बात करेंगे तो पी प्लांट के लिए आएगा जीनस Pisum and species name will be Sativum. समझ रहे हो? Pisum sativum. तो ये टोटल क्लासिफिकेशन. अब इसमें जितने भी लेबल मैंने लिखे उसमें के 70% आप ऑलरेडी जानते हो. मैंने बार बार ही आपको बोला है कि इतने टर्म्स आने के बाद रिजाइन मत कर दो. ऐसे टर्म देखते हो और बोलते हो अरे जान दो इतने टर्म्स मेरे से नहीं होते. जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट. देखो तो इसमें से कितने शब्द आप जानते हो. यू नो द वर्ड प्लांटे, यू नो शायद फेनेरोगैम स्पर्मेटोफाइटा भूल चुके हो. ओके, तो आई कैन से ये हमको हाईलाइट करना है. एंजियोस्पर्म्स यू नो, डाइकॉट यू नो, राइट. देन कैल्सीफ्लोरी ऐसे भी हमको ध्यान में रखना नहीं है. ओके, लेग्यूम फ्रूट ये तो नॉर्मल इंग्लिश का शब्द है. ओके, फैबेसी आपके लिए नया है. पीसम सटाइवम आपके लिए ओल्ड. तो देखो कितने सारे शब्द आपको ऑलरेडी पता है, बस कुछ देखने हैं. तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस प्लांट फैबेसी. ओके, चलो अब और डिटेल में देखते हैं. हर प्लांट पार्ट को डिटेल में समझते हैं. राइट. सी, so it is detailed structure of the flower, okay, of the family. Okay, देखो पूरा ये पूरा क्लाइंबर है.
ये पूरा क्लाइंबर है। ओके, इसके ये रूट्स है, देखो ये रूट्स, ये पूरा क्लाइंबर है, इसके ये रूट्स है, और ये रूट्स पे यहाँ पे देखो ये नोड्यूल्स ड्रॉ किए, ये नोड्यूलेटेड रूट है, जिसको हमने अभी बोला इसके अंदर राइजोबिया रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, देन दिस इज वन सिंगल ब्रांच। ओके, ब्रांच पे ये ऐसा लीफ है। ओके, लीफ है, लीफ इज कंपाउंड, देन इट इज petiole, rachis, and upper leaflets are modified to produce tendrils. Tendrils are spring-like wiry growth, जानते हो, which help in support. Okay, then this is one single fruit. देखो मटार की सेंग आपने देखी होगी, उसके अंदर है ये सेट, और ये है टोटल फ्लावर। ठीक है, तो इससे और डिटेल क्लोजअप हम देखते हैं। See, this is explaining each and everything with botanical terms. चलो अब ये पूरा आ गया बेटा। This is what is a plant, जो मैंने अभी आपको बताया। क्लाइंबर है, तो ये सपोर्ट पे ये क्लाइंबर वाइंड अप हो रहा है। सो इट इज अ वीक स्टेम, इट इज अ क्लाइंबर, ब्राउन कलर की स्टिक है, दैट इज सपोर्ट, एंड दिस इज द हैबिट। ओके, सो अगर हम हैबिट के बारे में बात करें, if we talk about habit of the plant, then pea plant is climber, but it doesn't mean all the plants are climber. Okay, see, it is climber, but along with that few are tree, few are shrubs. Okay, few are even herbs. Okay, so that is what is habit. Okay, then this is a compound leaf. This part is stalk, and after this is total rachis, and this is small leaflet. Okay, just now we said that in few leaves that the leaflet are modified to tendrils. Okay, then this is about the flower. ये total flower है, जो हमने अभी पेपिलियन जैसा, बटरफ्लाई जैसा दिखता है, हमने बोला। तो ये फ्लावर का टोटल लेंथ वाइज सेक्शन लिया है, ये फ्लावर का टोटल लेंथ वाइज सेक्शन दिया है। सो लुक एट दिस, दिस पार्ट इज कैलिक्स। Okay, this part is calyx. Wait a second. This is swollen tip of the pedicel, that is thalamus. Thalamus के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है, रेड कलर का पूरा मैंने swollen tip बताया, that is thalamus, right? Then इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, this one is the calyx. ये वाला देखो, यहाँ पे टोटल ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है। ओके, सो दिस इज कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर ब्लू कलर के है पेटल्स, ब्लू कलर के है पेटल। ओके, और ये पूरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अलग है। हमने एडहेजन कोहेजन शब्द देखे थे, सेपल अटैच टू सेपल, पेटल अटैच टू पेटल, स्टेमन अटैच टू स्टेमन। तो यहाँ पे हमको स्टेमन का अटैचमेंट मिलता है, बट दैट टू here what you see is that the androecium has 10 stamens. इसके पास 10 stamens है। ओके, 10 stamen में से ये एक अलग है और ये वाला 9 का बंडल है। So 9 stamen here and 1 stamen here. 9 stamens are attached in such a way that filaments are united. Filaments are united, but anthers are free. चलो बोलो मुझे आप, कौन सा टर्म याद है आपको? Filaments are united, anthers are free. Isn't it Adelphi? Okay, Adelphi. तो देखो यहाँ पे Adelphus है, filaments united है, anther free है, and one stamen is in another bundle, and 9 stamens are in one bundle. So total how many bundles are there? 2. How many bundles are there? 2. So filaments are united. They are arranged in 2 bundles. So the word, technical word, is diadelphous. Wait a second. It is diadelphi.
द कंडीशन इज कॉल्ड डायएडल्फस। तो एंड्रोशियम की पिक्यूलरिटी है डायएडल्फस स्टेमन। एंड्रोशियम की पिक्यूलरिटी है डायएडल्फस स्टेमन। ठीक है, ये फैमिली की पिक्यूलरिटी। पिक्यूलरिटी नंबर 1, इट हैज रूट नोड्यूल्स, देन लेग्यूम पोर, पेपेलिनियस करोला, okay, leaf tendrils, okay, and then what I said, diadelphous condition। अंत में हम पूरे peculiarities लिखेंगे। ठीक है, then come to sepal हो गया, then petal को आ जाओ। see, these are the 5 petals। यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं blue color, I am using blue color because they also used blue color। see, this is the outermost petal, 1 in number, outermost called standard। It is the outermost called standard। Then wings, this is second and third, right? And these are innermost 2, fourth and fifth। So it is total 5 petals। ठीक है, अब देखो sepals 5 है, petals भी 5 है, stamen 10 है। Isn't it flower is having the whorl members 5 or multiples of 5? Pentamerous flower, sepals 5 united, petals 5 free, right? Then stamen 10, diadelphous condition। So 5 or multiples of 5, then it is pentamerous flower। समझ रहे हो? Okay, then next one, see, ये पेटल की जो अरेंजमेंट है वो बड़ी स्पेसिफिक है। This standard is one single largest anterior। okay, अब देखो और एक बात, ये है इसका मेन प्लांट बॉडी। ओके, और मेन प्लांट बॉडी की तरफ ये जो सबसे लार्जेस्ट पेटल है, ओके, ये पेटल लार्जेस्ट पेटल है, वो मदर एक्सिस की तरफ है एंड फ्लावर इज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो मेन प्लांट का स्टेम उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू मदर एक्सिस the flower is oriented like this। with respect to mother axis, the flower is oriented like this। okay, so this is the anterior large petal called standard, also called waxillum। why? because this activation is waxillary, याद करो। okay, largest petal waxillum standard, उसके अंदर 2 छोटे से, that is wing, right? And then the innermost 2 kill carina। okay, these 2 kill carina are united to each other। ये दोनों एक दूसरे को अटैच्ड है, लेकिन ये ऊपर के 3 एक दूसरे को अटैच नहीं है। so waxillary estivation is one more peculiarity of this family। okay, then see, I repeat, plant is climber, pea plant, Pisum sativum is climber। peculiarity number 1, root nodule, legume, papillineous corolla, butterfly shape, then leaf tendrils, okay, then the flower which is pentamerous with papillineous corolla, then corolla में हमने क्या बोला था? standard, waxillum, wing, alley, kill carina। okay, total 5 petals। then this stamens are 10, forming androecium। it is showing diadelphous condition। 9 plus 1 की arrangement है। adelphi is union of filaments but the anthers are free। okay, we are talking about peculiarity। okay, अब एक कैरेक्टर को पकड़ के दूसरा कैरेक्टर को पकड़ के तीसरा, ऐसे हम ध्यान में रखेंगे। okay, चलो अब देखो, आप डाइकोटिलॉडोन नहीं ये जानते हो। डाइकोट मतलब इसके इम्ब्रियो के पास 2 कोटिलेडॉन है। डाइकोट प्लांट जनरली पेंटामेरस होते हैं। डाइकोट प्लांट के फ्लावर जनरली पेंटामेरस होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन इसके पास होता है। ठीक है, तो एक को पकड़ के दूसरा आप कैरेक्टर अपने आप ध्यान रख पाओगे। ठीक है, देन तो करोला हो गया। तो सेपल्स 5 यूनाइटेड, पेटल्स फ्री, डायडेल्फस कंडीशन इन androecium। and now come to carpel, gynoecium। it is monocarpellary। okay, ये सिंगल कार्पेल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ovary is elongated like this, which is showing marginal placentation। इसके टोटल मार्जिन में यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंज है। ओके, टोटल ओव्यूल्स इस तरह से अरेंज है। इट्स शोइंग मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो मोनोकार्पेलरी, देन यूनिलोक्यूलर,
मार्जिनल प्लासेंटेशन वाला ओवरी, ओके, एंड दिस इज टोटल फ्लोरल डायग्राम जो मैंने अभी आपसे बात की थी। चलो सर, सबसे पहले एक बार ये पूरा हम पेक्युलरिटीज के हिसाब से पॉइंट्स लिख लेते हैं, एंड देन दोज पेक्युलरिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन फ्लोरल डायग्राम। ओके, एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लावर इज देयर इन फ्लोरल डायग्राम। ओके, चलो एक बार ठीक से देख लो बेटा। We'll write down the peculiarities and then come to floral formula. See now, ये peculiarities है। बस बेटा ये peculiarity पे MCQ आएंगे, इतना ध्यान में रखना है विजुअलाइज कर करके। ये peculiarities पे MCQ आएंगे, यही peculiarity floral formula में भी बार बार दिखेंगी। ओके, सी चलो सबसे पहले peculiarities of pea plant in जनरल भाषा, ओके, नो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, सिंपल प्रकार से देखेंगे। ओके, सी रूट नोड्यूल्स विथ rhizobia. Okay, what we are discussing, we are talking about the first peculiarity that the roots are taproot because it developed from seeds of radicle. Okay, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के रेडिकल से टैपरूट निकलेगा, टैपरूट में अंदर राइजोबिया जाके रहेंगे तो रूट नोड्यूल्स बनाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। देन रूट नोड्यूल्स है, रूट के लिए लीफ की पेक्युलरिटी है इट हैज टेंड्रिल्स, लीफ की पेक्युलरिटी है इट हैज लीफ टेंड्रिल, और एक शब्द कहीं आपको मिलेगा इट हैज पल्विनस लीफ बेस। अब ये शब्द भी आपको मैंने जवार प्लांट के वक्त सिखाया था, सो इट इज समहाउ होल्डिंग द सेम, स्टेम से चारों साइड से ये लीफ पकड़ के रखेगा, सो ये एडिशनल वर्ड। देन फ्लावर इज पेंटामेरस, पेंटा मतलब 5, all the floral members are 5 or multiples of 5, which is characteristic feature of dicot plant. Dicot is the seed with 2 cotyledons. seed के अंदर embryo, embryo के 2 cotyledons, right? Then come to pentamerous flower में sepals 5 है, okay? They are united. वो peculiarity नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। Corolla waxillary estivation is its very important characteristic feature. Floral formula में भी waxillary estivation है, तो झट से आंसर मार्क करना है आपने फैबेसी। ठीक है, वो झट से आपको समझ में आता है। waxillary estivation का ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा था, आउटर मोस्ट स्टैंडर्ड, अंदर के 2 और सबसे अंदर के किल करीना। ओके, तो waxillary estivation जहां पे हमको मिलेगा आउटर मोस्ट, हमने waxillary बोला था, estivation में आउटर मोस्ट 1 petal, then 2 and innermost little one 2. So the arrangement is 1 plus 2 plus 2. 1 waxillum, 2 wings, 2 kill carina. Okay, then androecium is diadelphous. Adelphi filaments are united, anthers are free. They are united to form 2 bundles. In one bundle, 9 stamens are there. In other bundle, 1 stamen is there. So the arrangement is diadelphous, 2 bundles. Filaments are united. Okay, gynoecium. See, gynoecium is with one single carpel. Gynoecium is with one single carpel. So it is monocarpellary. Okay, superior ovary. Monocarpellary, superior ovary, marginal placentation. Okay, so अब ये हम सब डिटेल सीख चुके हैं, right? Okay, so this is what about its characteristic feature. चलो अच्छे से लिख लो फटाफट, इस पे MCQ आने वाला है। चलो हो गया। Then come back again to this floral formula. Okay, जो अब हमने ये पूरा फ्लावर सीखा है बेटा, ये फ्लावर को यहाँ पे टोटल रिप्रेजेंट किया है, ये फ्लावर को यहाँ पे टोटल रिप्रेजेंट किया है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। जो व्रल हमने सीखे, ये आउटर मोस्ट कैलिक्स है, देन ब्लू कलर का करोला है, देन ये येलो कलर के स्टेमन है, और अंदर के सबसे अंदर का कार्पेल है। सो दीज आर रिप्रेजेंटेटिंग व्रल। सो हाउ इट इज डन, ये जो फ्लावर है, पेपिलिनियस जो फ्लावर है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे पकड़ के अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमको व्रल मेंबर्स ऐसे दिखेंगे। ओके, सो सी आउटर मोस्ट ग्रीन कलर 5 पेटल्स, ये 1 2 3 4 5, ये जो सर्कल है, ओके, ये वाला, ये है मदर एक्सिस। मैंने बोला था ना
कि मदर एक्सिस को फ्लावर का ओरिएंटेशन इस प्रकार से है. सो इट इज रिप्रेजेंटेटिंग मदर एक्सिस. With respect to mother axis, flower का position हम देखेंगे. Okay, so it is having, see, 5 green color structure. So these 5 are sepals. Okay, how many sepals are there? Sepals are 5. And look at this. Why it is shown? ये ऐसा क्यों बताया? Because sepals are united. 5 sepals united. Okay, then come to this blue colored one. These are petal. Petal में ये outermost एक जिसको हमने बोला था, याद करो, वैक्सिलम. राइट, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है outermost. ओके, ये एक, ये है 2 जिसको हमने बोला विंग्स एले. राइट, और ये जो है ये 2 वाले यहाँ पे फिर से इसका यूनियन इंडिकेट किया है. सो दीज आर 2 किल करीना. सो दिस एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन. Isn't it crystal clear, visible? Okay, then come to the next part. This yellow one, androecium. Androecium में देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and they are connected. So these are 9 stamen in one bundle and this one is one separate. ओके, तो इसको हमने कौन सा शब्द यूज किया था? डायएडल्फी. याद है? राइट, एंड दिस इज वन सिंगल ओवरी. लुक एट दैट सेम डायग्राम. वन सिंगल ओवरी, monocarpellary, one chambered and with marginal placentation and the ovary is superior. अगर आपको जुगाड़ू बात बोलती हूँ. ओके, आपको अगर एमसीक्यू का आंसर देना है तो फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले पेक्युलरिटी देखो. यहाँ पे पेक्युलरिटी है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, डायडल्फस कंडीशन. अगर वो भी भूल गए तो सिंपल, ये डायग्राम देख के आपको सिंगल कार्पेल दिखाई दे रहा है ना. इट इज हैविंग वन सिंगल कार्पेल, मोनोकार्पेलरी. आपके सिलेबस में बेटा 3 फैमिलीज है. तीनों का सीक्वेंस सबसे पहले ध्यान में रखो. सीक्वेंस फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी. फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी. पहली फैबेसी मोनोकार्पेलरी, दूसरी सोलेनेसी बाइकार्पेलरी, तीसरी लिलिएसी ट्राइकार्पेलरी. पहली फैमिली फैबेसी, पेपिलिनेसी. राइट, उसके पास पहली है ना एक कार्पेल है. ओके, सोलेनेसी दूसरी है ना, उसके पास 2 कार्पेल है. ओके, लिलिएसी तीसरे नंबर की है ना, उसके पास 3 कार्पेल है. आप बस अंदर देखो, आपको सबसे पहले समझेगा ये फ्लावर क्या है. आपका 80% पॉइंट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गया. अब फैमिली के पेक्युलरिटीज आपने लर्न किए हैं, वो थोड़ा सा रिकलेक्ट करके आप आंसर मार्क कर सकते हो. तो कैन यू सी द फ्लोरल फॉर्मूला? फ्लोरल फॉर्मूला इज ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके बेटा, ठीक से देखो. लेंथ वाइज सेक्शन इज दिस. कंपेयर करो, ये लेंथ वाइज सेक्शन है, ये वाला लेंथ वाइज सेक्शन है. ओके, और ये वाला ट्रांसवर्स सेक्शन. एलएस में आपको पेडिसिल पे, ओके, थैलेमस पे अलग अलग फ्लोरल फरल कैसे इंसर्ट हुए. देखो यहाँ पे ओवरी आपको सबसे सुपेरियर नजर आ रही है. ओके, ओवरी इज दिस. ओके, ऑल अदर फ्लोरल फरल्स आर बिलो इट, सो ओवरी इज सुपेरियर. LS gives you this insertional part and the transverse section gives you total arrangement of the flower with respect to outer to inner, sepal, petal, stamen, carpel. Okay? अब इसी को ये बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम. इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम को समझ के, दिस इज फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम को समझ के हमको फ्लोरल फॉर्मूला लिखते आना चाहिए. अब फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा, देखो फ्लावर के टर्मिनोलॉजी से याद करो. हमने फ्लावर की टर्मिनोलॉजी सीखी थी, वो बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, राइट, देन जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, isn't it? And all the arrangement with respect to calyx, corolla, androecium, gynoecium.
तो फ्लोरल डायग्राम को देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिखते आना चाहिए, फ्लोरल फॉर्मूला को देख के फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। बड़ा ही सिंपल है। चलो एवरीवन वर्क विथ मी, टेक आउट एनसीईआरटी, कम टू पेज नंबर 79 एंड लुक एट दैट फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये जो टोटल फ्लावर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, टोटल फ्लावर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बेटा, ये फ्लावर को अगर हम एक सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाल्स बनेंगे, राइट। ये भी जो डायग्राम है इसको अगर हम ऐसे सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो 2 हाफ इक्वल है, तो इजंट इट zyगोमॉर्फिक। हमने बोला था आर बॉडी इज zyगोमॉर्फिक, वन सिंगल सेक्शन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द फ्लावर और द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ। ओके, उसके लिए बोलेंगे दिस मेथड से। ओके, दिस इज परसेंटेज का साइन है ये। अगर रेगुलर फ्लावर है, ओके, देखो दोनों शब्द देखते हैं, रेगुलर फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक, एनी सेक्शन पासिंग थ्रू फ्लावर cut the flower into equal half this side, okay, only one section cut into equal half this side, right। then bisexual, दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो देखो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का निशाना है this one, so this is combination of both male female का, okay, so this indicates bisexual। look at this, पहला परसेंटेज का साइन, फ्लावर इज zyगोमॉर्फिक, then मेल फीमेल का साइन bisexual, okay, then कैलिक्स के लिए K, कैलिक्स के लिए अल्फाबेट क्या यूज करेंगे, K5 पेंटामेरस जो है, ओके, एंड सी इट इज पुट इट इन अ ब्रैकेट मींस पेटल्स आर यूनाइटेड, कैलिक्स के K पेटल्स आर यूनाइटेड, ओके, देन सेपल्स आर 5 यूनाइटेड पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस में कौन सा शब्द आया, गैमोसेपलस, right, okay, so petals are united। then come to next one, that is corolla। corolla को देखो कैसे मेंशन किया है उन्होंने, corolla के लिए अल्फाबेट है C and the arrangement is 1 plus 2 plus 2, ये लास्ट के 2 को फिर से ब्रैकेट दे दिया because they are united। अब मैंने ये तीसरी बार आपको लिख के बताया, okay, C corolla arrangement is 1 plus 2 plus 2, Kilcarina are united, okay, outermost standard maxillum is 1, then 2 wings are free, Kilcarina are united, okay, then androecium के लिए A, देखो अगर आपको ये समझ में आया है तो बड़ा ही आसान है, एंड्रोशियम के लिए A है, A कितने हैं टोटल 10, लेकिन अरेंजमेंट कैसा है 9 यूनाइटेड प्लस 1, okay, so 9 united plus 1, so it is diadelphous condition। what is this diadelphous condition, okay, and then gynoecium innermost, say this G for gynoecium। अब उसके नीचे देखो G के नीचे लाइन ड्रॉ किया है, what it means, the gynoecium is superior, ovary is superior, rest of the flower is below that, okay, and it is वन सिंगल कार्पेल वाला मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी। इजंट इट दिस फ्लोरल डायग्राम जो बता रहा है वो सब फ्लोरल फॉर्मूला में आ गया, राइट। चलो लेट अस रीड, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज फैबेसी। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलिनेडी। चलो स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करते हैं बेटा, हमने इसके पहले क्या क्या देखा, एक एक पॉइंट पूरा रिवाइज करते हैं, ओके, सो सी इट इज इनिशियली कॉल्ड फैबेसी पेपिलिनेसी, ओके, देन सब फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम का मतलब फ्रूट होता है, लेग्यूम रूट नोडुल वाला, राइजोबिया वाला, नाइट्रोजन फिक्शन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह मिलेगा। देन द ट्री श्रब रूट ट्रीज श्रब्स हर्ब्स एंड इवन क्लाइंबर्स, इसके हैबिटेट में सब आएगा। रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट विद राइजोबिया, ओके, इजंट इट, हमने ये सब पेक्युलैरिटी में ऐड किया है, ओके। देन नेक्स्ट डायग्राम हमने देखा था फैमिली का, सबसे
पहले हमने फैबेसी फैमिली का डायग्राम देखा था और क्लासिफिकेशन देखा था. ओके, सो सी दिस वन इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर. ओके, सो देख लो एक बार रिवाइज करने के लिए. ये फैमिली देखी थी, देन ये टोटल प्लांट. ओके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. बराबर. चलो, सो नाउ वी आर रीडिंग ऑल द कैरेक्टर्स. लीव्स अल्टरनेट. ओके, देखो एक लीफ, कंपाउंड लीफ इधर है, दूसरा इधर है. सो लीफ के फाइलोटैक्सी अल्टरनेट. देन लीफ बेस पल्विनेट, पल्विनस लीफ बेस. ओके, जिसका डायग्राम मैंने आपको इसके पहले भी बताया था. अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ऐसे बोलेंगे. ये स्टेम जाता है बीच में से. ओके, तो ये स्टेम को बाजू से ऐसे कवर करके ये लीफ अरेंज होगा. ओके, और इसके बीच में से स्टेम गया है, ऐसे हमको दिखाई देगा. It will appear like this. Okay, so this is pulvinous leaf base. Base is covering the stem. Okay, then stipulate, venation, reticulate. अगर डाइकॉट है तो venation reticulate ही होता है. Then inflorescence, racemodes, ये ध्यान में रखेंगे. अब आप बोलेंगे मैडम एक ही तो फूल है. हाँ बेटा, solitary inflorescence होता है ये. Okay, just remember it is a racemose type. Okay, we'll discuss in revision. Then flower is present, inflorescence अगर है तो racemose. Flower कैसा है? एक सिंगल. It's bisexual zygomorphic. It is having both the sex organ, male female. Okay, so जिसको हमने बोला था bisexual के लिए कौन सा साइन यूज किया था हमने? We draw it like this. Zygomorphic के लिए कौन सा शब्द यूज किया था? कौन सा साइन यूज किया था? परसेंटेज वाला. Okay, then sepals are 5 3. यहाँ पे भी ड्रॉ किए हैं. सेपल्स आर 5 यूनाइटेड. यहाँ पे भी सेपल्स ड्रॉ किए हैं 5. ओके, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया था हमने? गैमोसेपलस. देखो पूरा रिवीजन हो रहा है. ओके, ये है बाहर से पूरा दिखा हुआ सेपल, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में, और यहाँ पे है ये लेंथ वाइज सेक्शन में. तीनों पूरा ऐसे दिखेगा, पूरा का पूरा. ओके, व्हाट इज दैट? कैलिक्स इस प्रकार से दिखेगा. ओके, उसको कट किया लेंथ वाइज तो ऐसे दिखेगा. ट्रांसवर्स कट किया तो ऐसे दिखेगा. सो इट इज 5 सेपल्स यूनाइटेड. देन इसका एक्टिवेशन है वॉल टू वॉल. देखो यहाँ पे यूनाइटेड है. ओके, सो एक्टिवेशन इज valvate or in some plant it is imbricate. Corolla. Petals are 5, polypetalous, papilionaceous, consisting of a posterior standard. ये शब्द ध्यान में रखेंगे. Posterior standard or waxillum. Okay, 2 lateral wings and 2 anterior ones, that is kill carina. Okay, so ये है kill carina, which are 2 in number, and its position is anterior. With respect to mother axis, the arrangement is like this. So posterior standard mother axis की तरफ है. इसको हमने क्या बोला था? This is mother axis. Okay, then stamens and pistils, waxillary estivation. Okay, this is characteristic feature of corolla. हमने बोला था corolla is with waxillary estivation. देखो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं. We are revising it for better learning. Okay, then Androecium 10, Diadelphus, Anther diathecus. अब ये शब्द थोड़ा आपके लिए एडिशनल है. So these are 9, this one 1, so 9 plus 1, Diadelphus condition. And यहाँ पे स्टेमन के पास ऐसे 2 लोब होते हैं. ओके, ये एक लोब और ये दूसरा लोब. ओके, सो इसको बोलते हैं डायथेकस एंड दिस इज फिलामेंट. ओके, सो 2 लोब्स होते हैं एंथर के. इट्स डायथेकस. देन ओवरी सुपेरियर, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्युलर विथ मेनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल इज सिंगल. तो देखो यहाँ पे हमको टीएस में एक ही ओव्यूल दिखेगा. अगर हम एलएस की बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे ओव्यूल ड्रॉ करके बताए थे. इट हैज मेनी ओव्यूल्स. ओके, यहाँ पे एक ओव्यूल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, एंड दे आर अरेंज्ड ऑन मार्जिन. सो इट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन. आ गए पूरी बात. ओके, अब इंपॉर्टेंट थिंग इकोनॉमिकल यूजेस.
इकोनॉमिकल यूजेस को ध्यान दो. मेनी प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली आर सोर्सेस ऑफ पल्सेस. आप जो भी प्रोटीन रिच पल्सेस खाते हो, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली फैबेसी. ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट. डाई, इंडिगो फेरा. फाइबर्स, सन हेम्प. ओके, हमको कमर्शियल फाइबर देने वाला सन हेम्प है. और फॉडर, कैटल्स को वगैरह जो खिलाया जाता है, सिस्बानिया एंड ट्राइफोलियम. ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच आर वेरी कॉमन इज ट्यूलिप, स्वीट पोटैटो, सॉरी स्वीट पी, ट्यूलिप, lupin, that is sweet potato, and medicinally important one is mulleanthe. Ornamental plants, I repeat, lupin, sweet pea. अब स्वीट पी एडिबल भी है ऑर्नामेंटल बोल के क्योंकि उसका फ्लावर जो है बड़ा अट्रैक्टिव है. एंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट इज मिलियाथी. ओके, अब ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछने की शक्यता बहुत ज्यादा है. Isn't it simple? So what formula we used? First visualize the family, then remember the peculiarities. Peculiarities को समझ के botanical terms relate करो. Botanical terms दिमाग में बैठ गए कि ये डायग्राम देखना है, ये डायग्राम आपका मास्टर डायग्राम है जो हर एमसीक्यू का आंसर करेगा. एंड देन फ्लावर को देख के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल फॉर्मूला को देख के फ्लोरल डायग्राम. कि ये तीनों चीजें हमको इमेजिन करती आनी चाहिए. अगर टर्मिनोलॉजी दिमाग में बैठ गई तो फ्लावर के डायग्राम से फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम हमको याद रखना आसान है. इट इज अ सिंपल, जस्ट रिक्वायर रिवीजन.